in case it is visible. Yes, ma'am. It is Yeah. visible. Okay. Thank you so much. Um, so, as far as issues in educational management is concerned, see, every field has their own set of issues, challenges, problems, and as educational managers, uh, it is our duty, and it is we have to make sure that we try to resolve all these issues with the skills that we acquire, with the capabilities that we acquire. So we have to make sure to overcome these issues. When we talk about the formal education sector, so I hope you know what is the meaning of formal education as elaborated by UNESCO. It says that education provided in the system of schools, colleges, universities, and other formal education institutions that normally constitutes a continuous ladder of full-time education of children and young people, generally beginning at the age of 5 to 7 and continuing up to 20 to 25 years. So, anything which is related to teaching in a formal setup relates to the formal education sector. As we can see in this slide, the formal education system in India can be divided into 12 years of formal schooling. That excludes 2 to 3 years of preschool education, 3 to 4 years of undergrad education, 2 to 3 years of postgraduate education, 3 to 4 years of doctoral level education. So ये सारे डिफरेंट आप कह सकते हैं लेवल्स हैं हमारे फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में. विल ट्राई टू कवर अप these for different stages one by one. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो प्रेजेंट सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन जो अभी तक चले आ रहा था वो 10+2 सिस्टम था. और उसमें ऑफ कोर्स +3 जो है वो दैट इज पहले मैं 10+2 से बात करती हूँ. तो 10 years इज फॉर. इज माई वॉइस ब्रेकिंग? एम आई नॉट ऑडिबल प्रॉपरली? Someone is saying. Others who can hear me properly, please just write whether audible or not. Someone is saying not audible, but others are mostly are saying audible. I think then Kishorji, you need to check your internet connection. In case my voice is not audible, please just you can unmute and tell me immediately. Okay. Um, So 10+2 system is includes 10 years of matriculation, 2 years of intermediate education, and 2 years of undergraduate study. Uh, 3 years of undergraduate study leading to a university degree. I'm sorry for that correction. It should be 3 years. अम, अभी तक यही सिस्टम चले आ रहा था स्कूल एजुकेशन का. बट अब आपको पता है विद द ऑनसेट ऑफ NEP 2020 now we are going to follow 5+3+3+4 system, and it is it has been implemented and it is in the process of being implemented in some of the states. This includes 5 years in the foundational stage, 3 years in the preparatory stage, 3 years in the middle stage, and 4 years in the secondary stage. And apart from school education, which is formal in structure, we have higher education in India that provides an opportunity to specialize in a particular field of study. And it includes our technical education, professional education, college and university education, and so on. So we will talk about first of all present system of formal school education in the context of NEP 2020. I'm going to focus on NEP only because अब ये चीज़ जो आ चुकी है तो पहले वाला सिस्टम जो है अगर आप उससे कंपेयर करो 10+2 सिस्टम जो था स्कूल एजुकेशन का, सो 10 years रेंजिंग फ्रॉम एज ग्रुप 6 to 16 एंड +2 यानी कि 16 to 18 जो कि हमारी
11th एंड 12th क्लासेस होती हैं जिसको हम लोग सीनियर सेकेंडरी क्लासेस भी कहते हैं. ओके. Now we will talk about the present structure of formal education, school education, as per NEP 2020, जिसे हम न्यू pedagogical and curricular structure भी कहते हैं. तो that is 5 years. 5 years में भी further it is divided into 3 years of preschool और आंगनवाड़ी और preschool education जिसे हम कहते हैं, that is from age group 3 to 6, and 2 years of formal school education that includes your classes 1 and 2 in the age group of 6 to 9. So this is your foundational stage of 5 years. Why it has been laid so much of stress that I will cover up in my subsequent presentation. Then we have 3 years of preparatory stage from classes 3 to 5, that is age group of 8 to 11. 3 years of middle school stage covering classes 6 to 8, age group of 11 to 14. Sorry. And 4 years of secondary school education covering classes 9 to 12, that is in the age group of 14 to 18. So this is going to be the education ladder of as per NEP 2020 that we are going to follow. सो NEP 2020 का विजन क्या है, ये हमें समझना ज़रूरी है. ये स्लाइड्स मेरे को NCERT से ही मिली हैं. NCERT के अकॉर्डिंग पेडागोजी हमारी NEP 2020 में ये कहती है कि इट शुड बी एक्सपीरियंशियल, होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, इंक्वायरी ड्रिवन, डिस्कवरी ओरिएंटेड, लर्नर सेंटर्ड, डिस्कशन बेस्ड, फ्लेक्सिबल एंड enjoyable. अर्लियर हमारी जो बड़ी रिजिड और मोनोटोनस काइंड ऑफ एजुकेशन थी, वो अब NEP 2020 के ऑनसेट से इट इज़ गोइंग टू बी मोर फन, मोर enjoyable, and a great learning experience for all the students. So the vision of NEP 2020 is holistic development. Basically हमारी all round development of the personality. That is the aim of NEP 2020, जिसमें वो कहते हैं कि बच्चे के cognitive, affective, psychomotor तीनों डोमेन्स को हमने डेवलप करना है. सिर्फ बच्चे को इंटेलेक्चुअली साउंड नहीं बनाना, उसे इमोशनली इंटेलिजेंट भी बनाना है, और उसकी जो मोटर स्किल्स हैं, यानी कि कुछ एबिलिटीज टू डू वर्क विच इज़ जॉब ओरिएंटेड, विच इज़ प्रोडक्टिव, तो वो भी it is equally important. Then NEP says that education has to be the competency based, basically focusing on the knowledge, skills, attitudes and behaviors of the students. They have also suggested restructuring of curricular and pedagogical practices in school. तो उसके लिए इन्होंने कहा कि जो सबसे पहले अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है, या प्ले स्कूल जिसे हम आंगनवाड़ी, बाल वाटिका वगैरह में देते हैं, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि इट इज़ अ कंटिन्यूम, मतलब ये फाउंडेशन स्टेज है कि बच्चे की जो नींव है वो इस टाइम पे ही बनती है. तो इस स्टेज को बहुत ज़्यादा फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिकली इट इज़ जस्ट अ फाउंडेशन that lays to the future of the child in course of time. It highlights age appropriate curriculum, learning goals and pedagogy. Naturally they are very small kids, so we have to focus on different kind of pedagogies. The thrust of curriculum and pedagogy should be it is not about what children learn, it is about how they learn. So our goal is to see what kind of how they can learn in an effective way by focusing on different learning styles of the learners, be it auditory, visual or kinesthetic. So ultimately our goal is that we have to find out the hidden abilities of all the learners, because they are there and we need to identify them and develop those skills and values across different domains and stages. तो करिकुलम हमारा कैसा होना चाहिए, जिसमें कि कोर कॉन्सेप्ट्स हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के ऊपर फोकस हो,
love for the country, love for the, uh, uh, fellow beings. That should be our major concern. And regarding pedagogies, they have talked about experiential, holistic, integrated, inquiry driven, discovery oriented, learner centered, discussion based, flexible and enjoyable. ये सारे जो शब्द यूज किए गए हैं, वो आजकल की जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है उसको मद्देनजर रखते हुए, जो कि बच्चों को सिखानी चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि इग्नू ने अपने जो बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड प्रोग्राम है उसमें जो पेडागोजी की बात की और लेसन प्लानिंग की बात की है, तो उन्होंने कंस्ट्रक्टिविस्ट बेस्ड लेसन प्लान्स अपने बहुत फोकस किए हैं। और इनके जब हमारी बीएड की वर्कशॉप्स लगती हैं, जैसे आज से शुरू है वर्कशॉप हमारी सेकेंड ईयर की, तो उसमें ये लेसन प्लानिंग सिखाई जाती है और उसके बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो इन लेसन्स को डिलीवर भी करते हैं। तो मतलब कहने का है कि वो एक पुराने ज़माने में जो रोट मेमोरी हम डेवलप कर रहे हैं, करते चले आ रहे हैं इतने सालों से, लेक्चर से पढ़ाते जा रहे हैं, वो अब हटके बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, वो उसका कॉन्सेप्ट आने वाला है। तो अब मैं बात करूँगी शुरू डिफरेंट स्टेजेस की ऑफ फॉर्मल स्कूल एजुकेशन एज पर NEP 2020। Regarding the foundation stage, as you can see in the picture, so colorful, bright, and children are enjoying in the fun classroom where there is scope of so many activities. So this is the foundation stage of learning. इस स्टेज पे जो आप बच्चों को सिखा देते हो वो सारी ज़िंदगी उनके साथ में रहता है। तो अगर नींव पक्की होगी तो इमारत भी अच्छी होगी। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दैट वी फॉलो द फंडामेंटल एम ऑफ दिस फाउंडेशनल स्टेज इज़ अटेनिंग फंक्शनल लिटरेसी। इस स्टेज पे ही हम बच्चों को थोड़ा बहुत सिखा देते हैं, न्यूमरेसी भी, नंबर्स को पहचानना, समझना, उनको यूज़ करना और बेसिक अल्फ़ाबेट्स का ज्ञान, रीड, राइट, बेसिक ऑपरेशंस मैथ्स के, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह। और इस स्टेज में हम बच्चों को आउटडोर प्लेज, पजल्स, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ड्राइंग, पेंटिंग, ऐसी एक्टिविटीज़ में जो कि बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग भी हो और साथ में उनको लर्न फन विद लर्न का कॉन्सेप्ट जो है वो इस स्टेज के लिए बना है। Apart from that, mathematical and computational thinking, and NEP says that the child has to be taught in their mother tongue preferably, but there should be focus on all the different languages what child can at least English, Hindi and their regional language। और अगर मदर टंग में उनको पढ़ाना चाहिए, NEP ने यही कहा है। और इसके लिए आंगनवाड़ी सेंटर्स भी बनाए जाएँगे और वैसे बने भी हुए हैं बहुत सारे, और उनको और भी ज़्यादा डेवलप किया जाएगा, स्ट्रेंथन किया जाएगा, ताकि वहाँ पे बच्चों को फन फील्ड एक्टिविटीज़ जो हैं वो आंगनवाड़ी वर्कर्स करवा सकें। सो ECC यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की जो पेडागॉजीज़ हैं वो बच्चों को कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर में पढ़ाने वाली पेडागॉजीज़ नहीं है, बट play based, activity based, dealing with numbers, languages, colors, shapes, um, plays, puzzles, logical thinking, drawing, painting, visual art, ड्रामा, पपेट्री, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें जिससे कि बच्चा जो है वो बहुत ईज़िली अंडरस्टैंड भी करेगा और फन में लर्न करेगा। The ultimate aim is to develop certain values at this stage, which are social capacity, sensitivity, good behavior, basic manners like courtesy, ethics, बड़ों से कैसे बात करनी है, अपनी पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, या पब्लिक क्लेanलीनेस। बच्चों को, छोटे बच्चों को ये बहुत अच्छे से आजकल समझ में आता है। एनवायरमेंटल कंसर्न्स उनको सिखाए जा रहे हैं कि उन्होंने पॉल्यूशन नहीं करना है, उन्होंने चीज़ें नहीं गंद नहीं डालना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि सोशल स्किल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है इस स्टेज में, गैंग एज भी कहते हैं, तो टीम वर्क और कोऑपरेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एट दिस स्टेज। देन वी कम टू द प्रेपरेटरी स्टेज ऑफ 8 to 11 years। अभी तक हमने फाउंडेशन स्टेज की बात की। नाउ 5, that was 5 years, now we will talk about preparatory stage from 8 to 11 years,
जो प्राइमरी स्कूल एजुकेशन होती है उसमें हमारा बेसिक एम होता है वही ये चीज़ें कंटिन्यूड रहेंगी, प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड या डिस्कवरी बेस्ड, but here they will be taught certain टेक्स्ट मटेरियल्स, बुक्स होंगी, इंट्रोड्यूस हो जाएंगी, थोड़ा सा फॉर्मल स्ट्रक्चर आ जाएगा, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आ जाएगा, एंड देन दे कैन चूज एनी लैंग्वेज एट लेटर स्टेज। और इसके अलावा कई स्कूल्स तो फॉरेन लैंग्वेजेस भी इंट्रोड्यूस करने लगे हैं। So teaching at this stage has to be, bilingual. Bilingual means you can use mixed language, ताकि जो बच्चा जो है वो familiar हो सके अपनी language से, और language should only be a medium of instruction, should not become a barrier for the child. We have to provide opportunities to use language with their classmates, the teachers, and other members of the family or the society. At preparatory stage again learning will be experiential, जिसमें कि बच्चा जो है concepts, ideas को through different experiences सीखेगा, daily life experiences, that will be in great focus at this stage also. And interactive teaching होगी ज़्यादा इसमें कि we want our children to be active learners, so there would be activities, discussions, questionings, and learning has to be more enjoyable, more creative, where the child can develop a deeper understanding for experiential learning. At foundational and preparatory stage, there are certain issues that are confronting us as educators. So let us see what are these issues. So primary schooling in formal sector, as we all know, ये ज़्यादातर गवर्नमेंट रन होते हैं, या इवन जैसे स्पेशली लाइक इन रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज गवर्नमेंट स्कूल्स ही ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पे एक ही टीचर इंचार्ज बना दिया जाता है सारे सब्जेक्ट्स के लिए विदाउट एनी mastery of the subject. So that is one of the challenges, that one teacher may not be that capable to teach all the subjects, who doesn't have mastery in all the subjects. So और दूसरा इशू है कि सबसे बड़ा थ्रस्ट होता है टू हैव मोर एनरोलमेंट्स, बट एनरोलमेंट करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको रिटेन करना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं तो ड्रॉप आउट रेट जो है वो स्टेज में बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। Children tend to leave the school very early. So this is the a major issue that is confronting our foundational and preparatory stage. तो रिटेंशन हम तभी कर सकते हैं जब हमारी जो स्कूल की मैनेजमेंट है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, पार्टिसिपेटिव है, पेरेंट्स का भी हम उसमें व्यूज़ ले रहे हैं, कम्युनिटी की भी इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं अगर, then retention can be enhanced. Another issue confronting is equity of access, because जैसे कि एज पर नॉर्म्स है कि अगर 300 स्टूडेंट्स के लिए एक ही स्कूल होगा, एक मतलब विद इन अ किलोमीटर एट प्राइमरी लेवल, और अगर एलिमेंट्री लेवल पे 500 स्टूडेंट्स के लिए 3 किलोमीटर में एक ही स्कूल होगा। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेबरहुड स्कूल्स है वो NEP 2020 ने कहा है कि और स्कूल्स ज़्यादा खोलने की ज़रूरत है जो कि बच्चे की विद इन रीच हों, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। अभी भी आप देख रहे होंगे हिली एरियाज़ में या रूरल एरियाज़ में चिल्ड्रन हैव टू ट्रैवल अ लॉट टू गो टू टू रिसीव अ बेसिक एजुकेशन ऑल्सो। सो अगर उनको एक्सेस ही नहीं है तो फिर हम किस एजुकेशन की बात कर रहे हैं, नहीं। एंड प्राइमरी स्टेज जो है वो हमें इसको हम ये नहीं इग्नोर कर सकते कि हायर एजुकेशन में फंडिंग वगैरह ज़्यादा है, इसमें भी हमें फंडिंग इन्हांस करने की ज़रूरत है। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, करिकुलम इंटरैक्टिव, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंगेजिंग, एंड टीचर्स क्वालिटी हैज़ टू बी एट पार विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इश्यूज़ हैं जो हमारे फाउंडेशनल और preparatory stages को confront कर रहे हैं। Then we talk about the middle stages as per NEP 2020 from 11 to 14 years of age. At this stage, जैसे कि मिडिल स्टेज आपको पता है कि ये एक बड़ी
ट्रांजिटरी स्टेज होती है, नहीं बीच की स्टेज होती है, फ्रॉम बिकमिंग एन एडल्ट लेटर ऑन, यू नो टू एंड फ्रॉम प्राइमरी। ना तो बच्चा बहुत छोटा बच्चा है, थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, बट अभी पूरी तरह से बड़ा भी नहीं हुआ है। तो अभी ये बच्चा टूवर्ड्स अडोलेसेंट जा रहा है। एडोलेसेंस में अपनी सेट ऑफ इश्यूज होते हैं, वो आप सभी जानते ही हैं एज एजुकेशनिस्ट। बट वी हैव टू सी दैट इस स्टेज में हम बच्चों को मैथ्स, आर्ट, साइंस, फॉर्मल एजुकेशन या जो सब्जेक्ट्स आगे इन्होंने लेने हैं उनकी एक इस स्टेज में फाउंडेशन बना दी जाती है। और बाय इन्वॉल्विंग क्रॉस करिकुलर या इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, दैट इज़ बेसिकली हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करके उनमें से बेस्ट निकाल के अगर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो नेचुरली इट इज़ मोर एन्जॉयबल फॉर देम। रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि ईबीएसबी एक्टिविटीज़ बहुत गवर्नमेंट ने ली, एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव, जिसमें कि स्टूडेंट्स को मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में भी बताया, सॉरी मेजर इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है। और इसमें हम लोग आपने देखा होगा कि किसी यूनियन टेरिटरी को या किसी स्टेट को लेकर के उसकी लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करते हैं, और वो हर रोज़ एक वाक्य, इस तरह की बड़ी एंगेजिंग एक्टिविटीज़ रहती हैं इसमें। So the project or activity, whatever we do at this stage, middle stages also, that also has to be a joyful activity. So it should not involve any formal assessments, because ultimately our goal is to make the teaching learning process more interactive, more engaging for the students, and not make it a dull process. तो इस स्टेज पे हम मिडिल स्टेजेस में हम वोकेशनल सेंसिटिविटीज़ भी डेवलप कर सकते हैं। एनईपी 2020 कहती है कि बच्चों को कोई बेसिक वोकेशनल क्राफ्ट्स, कारपेंट्री, इलेक्ट्रिक वर्क, मेटल वर्क, गार्डनिंग, पॉटरी, ये सारे कोर्सेज़ जो हैं इनको वोकेशनल कोर्सेज़ करवाने चाहिए। दे हैव आल्सो रिकमेंडेड टू इंट्रोड्यूस कोडिंग एट दिस स्टेज, कि बच्चों को कोडिंग सिखानी चाहिए, क्योंकि आजकल इतनी सारी ऐप्स हैं जो कि कोडिंग पे ही बेस्ड हैं। सो अगर बच्चे कोडिंग सीख लेंगे तो दे विल बी एबल टू they can easily drive themselves to IT sector. इस स्टेज पे वैल्यू बिल्डिंग इज ऑल्सो अ ग्रेट, इट शुड बी अ ग्रेट फोकस, बिकॉज एट फ्रॉम अ वेरी यंग एज बच्चों को अगर ये सिखाया जाए कि यू हैव टू डू व्हाट इज राइट, and difference between right and wrong, and हमें अपने एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैसे अपनी कंट्री के लिए क्या हमारी ड्यूटीज़ हैं, कैसे उसको हमने, राइट्स तो हम सब सिखाते हैं बट अपनी ड्यूटीज़ के बारे में भी इनको सिखाना, दैट इज़ वेरी important, and so that they can make ethical decisions, what is right and what is wrong. NEP says that one can use different fables. Fables are nothing but the stories like पंचतंत्रा and जातक हितोपदेश, जिसमें कि मॉरल होता है स्टोरी में कोई। तो हमारी ये बहुत ही पुराने ज़माने में, हम लोग जब छोटे होते थे तब हम भी पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ते थे। तो ये जो कहानियाँ हैं इनमें बहुत अच्छे लेसन्स हैं। ये स्टूडेंट्स को हमें इनको ओरिएंट करना चाहिए, और हमारी जो इवन पुरानी शास्त्रों में कहानियाँ दी गई हैं वो भी इनको बतानी चाहिए, जो ग्रेट हमारे रिलीजियस लीडर्स या फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं, उनकी स्टोरीज़ भी इनको सुनाई जानी चाहिए, ताकि उनको एक इंस्पायर किया जा सके कि अपनी कंट्री का कितना अच्छा सॉलिड आप कह सकते हो कि बेस है, जिसमें हम इतनी अच्छी, इंडिया इज़ नोन फॉर सच वैल्यूज़, ब्रदरहुड एंड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड कर्टसी, मैनर्स, इनके लिए एक तहज़ीब जिसे हम कहते हैं, उसके लिए हमारा देश जो है वो पहचाना जाता है। So health and social sensitivity has to be nurtured through the curriculum, because many a times children at this stage tend to go for eating fast food and this kind of culture, where they start living a sedentary life.
तो उनको एक अच्छे एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस बताना, योगा में इन्वॉल्व करना, एक्सकर्शंस में इन्वॉल्व करना, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। और इनको हार्मफुल जो सब्सटेंसेस हैं, सब्सटेंस यूज़ के लिए इनको बचाना, कैसे उनको सिखाना है कि हमने टबैको से, अल्कोहल से, ड्रग्स से अपने आप को कैसे बचाना है, नहीं? So these are very important at this stage. Then comes the secondary stage, that is 14 to 18 years, 4 years of secondary stage, जिसमें कि 9th, 10th, 11th और 12th 4 क्लासेस रहेंगी। इसको हम लोगों ने इकट्ठा इसलिए 9th, 10th, 11th, 12th को कर दिया कि क्योंकि सेकेंडरी स्कूल स्टेज का जो अल्टीमेटली फोकस है, वो उनको प्रिपेयर करना है फॉर देयर फ्यूचर लाइफ, नहीं? तो इसके लिए हमने इनको या अब पहले तो होता था या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, पर अब ऐसा नहीं है। अब स्टूडेंट्स जो हैं दे कैन चूज़ फ्रॉम सो मेनी वैरायटी ऑफ ऑप्शंस कि आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, फैशन डिज़ाइनर या कोई एक्टर बनना चाहते हैं इवन, ठीक है? तो इतने सारे कोर्सेज़ हैं, या होटल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, ये बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, ये बिज़नेस इकोनॉमिक्स, बैचलर्स इन बिज़नेस इकोनॉमिक्स, या ये सीए का जो कोर्स होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, मास कम्युनिकेशन का। So different types of courses have been introduced, which students can pursue and make career as per their interest and ability. At this stage, I would just want to reiterate that parents should not force upon the children what stream they would like to choose, because um, you never know what is the potential of the child. In case you have taught the child and observed the child very closely, तो बच्चे को फ्रीडम देनी चाहिए कि वो अपना क्या करियर चूज़ करना चाहता है आगे के लिए, अपनी कैसी लाइफ देखता है। क्योंकि इट्स लाइक अ 360 डिग्री। जो आप अगर आज आप फ़ोर्स करके भी कर दोगे, अल्टीमेटली घूम फिर के वो वही करने वाला है जो उसने करना है। तो इट्स बेटर कि हम उसको उसकी चॉइस के मुताबिक, उसकी एप्टीट्यूड के मुताबिक उसको गाइड करें। कई बच्चे एम्बिशियस होकर के कोर्सेज़ ले लेते हैं, बाद में उनसे वो निभ नहीं रहे होते हैं। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम स्टूडेंट्स को कोई भी चीज़ें फ़ोर्स अपॉन ना करें। और इन 4 सालों में हमारा फ़ोकस मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी के ऊपर रहेगा, बेसिकली, क्योंकि इसमें आप जैसे कि पियाजे की भी आप पढ़ते होंगे, स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, उसमें उन्होंने बताया है कि जो सेकेंडरी एजुकेशन की ये स्टेज होती है, सेकेंडरी स्टेज, तो इसमें बच्चों के जो ये एब्स्ट्रैक्ट स्टेज है ये बेसिकली, तो बच्चे जो हैं इस स्टेज पे फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ जो हैं वो डेवलप करते हैं। और अगर आपने साइकोलॉजी में इंटेलिजेंस का टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि दिस इज़ द स्टेज इन लाइफ वेयर द इंटेलिजेंस रीचेज़ इट्स पीक। इसके बाद जितनी ज़्यादा इस स्टेज में है, उतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस कभी भी आईक्यू जो है हमारी नहीं रहती। धीरे-धीरे उसमें ग्रेजुअली डिक्लाइन ही आना है। तो नेचुरली यही स्टेज है जबकि बच्चे के पेडागॉजिकल और करिकुलर स्टाइल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हम ग्रेटर डेप्थ में लेके जा सकते हैं। खूब बहुत सारी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स और उनकी लाइफ एस्पिरेशंस को एनहांस करना, उनको गाइडेंस देना, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर हम उनको गाइडेंस नहीं प्रोवाइड करेंगे, दे विल गो हेबायर, है ना? सो टीचिंग एंड लर्निंग जो होगी वो इंटरैक्टिव रहेगी, इसमें भी नॉट लेक्चर डोमिनेटेड। एंड बहुत ज़्यादा हमने देखा सेकेंडरी स्कूल स्टेज जो है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इट बिकम्स अ वेरी स्टेज ऑफ ग्रेट प्रेशर्स इन लाइफ। तो जैसे कि स्टैनले हॉल भी कहते हैं ना कि एडोलेसेंस क्या है, इट्स अ स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइफ। तो इतने स्ट्रगल्स हैं, स्टॉर्म्स हैं लाइफ में, फिजिकल चेंजेस हैं, बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, इमोशनल चेंजेस आर गोइंग ऑन। तो इनको देखते हुए वी नीड टू हैव मोर एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज which are more creative in nature, which can direct them, which can channelize their energy. And NEP also says कि at least साल में
10 दिन का बैगलेस पीरियड होना ही चाहिए कि जब बच्चे बैग्स लेके ना आएँ। तो उसके लिए है कि उस टाइम पे हम उनको कोई वोकेशनल एक्टिविटीज़ में या स्किल बेस्ड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है हमारी, और उसमें बहुत सारे कोर्सेज़ आजकल कराए जा रहे हैं जिसमें कि हम स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। So our pedagogies at secondary school stage will be also um, involving active participation where we can form different clubs जैसे science club, maths club, है ना, और या different circles, math circle, poetry circle, debate circle, drama circle, sports circle, ताकि बच्चों के जो टैलेंट्स हैं वो उनको हम एनहांस कर सकें। योगा क्लब्स भी कर सकते हैं, समर प्रोग्राम्स, ओलंपियाड्स, सो मेनी थिंग्स कैन अपॉर्च्युनिटीज़ हमें देने की बात है स्टूडेंट्स को कि वो जिसमें भी इंटरेस्टेड हो, दे शुड बी एंगेज्ड। और इसके अलावा डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स रखे जा सकते हैं इन देयर ट्रेडिशनल वेज ऑफ लर्निंग अक्रॉस एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, योगा, जो हमारी पुरानी वैल्यूज़ हैं, पुराने सब्जेक्ट्स हैं, उनको भी रिवाइव करने की ज़रूरत है। एंड स्टूडेंट्स कैन बी टेकन टू डिफरेंट सिटीज़ और डिफरेंट स्टेट्स। इवन आजकल तो आपने देखा होगा कि बाहर भी लेकर के जाते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, नासा के विज़िट्स होते हैं। So cross-cultural exchange programs at this stage, they can be very meaningful for the students, and they can be shown certain video documentaries, and they can be introduced in the school curriculum. So हमारी नेशनल डॉक्यूमेंट्री की जो रेपोजिटरी है उसके अंदर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो कि हम स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं। The environment, creative learning environment has to be fostered, चाहे वो कोई भी स्टेज हो। तो क्रिएटिव लर्निंग एनवायरनमेंट का वही मतलब है कि जहाँ बच्चे जो हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग करते हैं, क्रिएटिव लर्निंग करते हैं, रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस, and they build up their present experiences. And they should be provided various choices with regard to what kind of activities or projects or field work they would like to do. Some students are very good in even doing research projects. Ultimately we have to see कि कोई discussions में, कोई debates में अच्छे हैं, या कोई communications में है, उनकी presentation skills बहुत strong है। Accordingly, the students should be given the opportunities where they can explore their talents, and ultimately we can have a great learning environment which is very conducive for the students. So सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन में भी कुछ इश्यूज कन्फ्रंट करते हैं। सबसे बड़ा इशू आता है एक्सेस का, कि जैसा कि मैंने अभी बताया कि रूरल एरियाज़ में और हिली एरियाज़ में या बैकवर्ड एरियाज़ में अभी भी स्कूल्स की कमी है, जहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत दूर जाना पड़ता है। तो वी नीड टू ब्रिंग more schools, and we need to have quality maintained in those schools. That means quality with regard to the curriculum, teaching learning material and infrastructure, and of course the teachers. अगर टीचर्स अच्छे होंगे तो स्टूडेंट्स भी अच्छे तैयार करेंगे। um, Another issue is relevance. That is, whatever we are teaching, that should be relevant. It should prepare them for future adulthood, career planning, and vision of quality of life. When we were taught different subjects in the schools, many of the things, many of the concepts, still we struggle to find कि कहाँ इनकी applicability है। ये theorems हमने इतनी सारी पढ़ी, पर इनका कहाँ application है। तो that education, I think it's high time कि we bring change in focus, कि हम किस तरीके से अपनी education को we should make it more dynamic and more emerging, more tune in times, modernized। जो आजकल employability हमारा focus है, independence focus है, self reliance, decision making, these are very important skills. When they go in higher education, they will become, predominantly content will not matter much as to these soft skills. तो इसलिए स्टूडेंट्स को सॉफ्ट स्किल्स में ओरिएंटेशन देना, एंड डाइवर्सिफिकेशन सिखाना, कि
ये कॉन्सेप्ट ऑफ अर्न व्हाइल लर्न का अभी भी इंडिया में नहीं है। पेरेंट्स जो हैं वो पूरी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद ही अपने बच्चों को कहते हैं कि अब आपने अर्न करने के लिए निकलना है। व्हाई नॉट अर्न व्हाइल लर्न? आप बाहर जाइए कंट्रीज़ में, वहाँ से हमें सीखने को है कि बच्चे जो हैं छोटी एज में ही काम भी करते हैं, साथ में पढ़ते भी हैं, अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, नेचुरली उनके एवेन्यूज़ भी खुल जाते हैं उससे, और उनको ये भी पता लग जाता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, जॉब सेक्टर में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, दे गेट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। स्मॉल जॉब्स दे कैन डू, दे कैन स्टार्ट इनिशियली, बट ग्रेजुअली जो है ये सारी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं लाइफ में। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एनईपी ने एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच के ऊपर बहुत फोकस किया है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब वही है कि स्टूडेंट्स की पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए कॉम्पिटेंसी बेस्ड, जिसमें उनके नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स सारे कवर होते हैं, और कंटेंट, प्रोसेस और लर्निंग एनवायरनमेंट, ये 3 चीज़ें हैं जो कि किसी भी फैक्ट, दीज़ आर द बेसिक फैक्टर्स दैट अफेक्ट लर्निंग ना। तो कंटेंट कैसा हो, एंगेजिंग हो, चैलेंजिंग हो, प्रोसेस कैसा हो जो कि जिसमें कि फन फिल्ड हो, इंटरेस्टिंग हो, जॉयफुल हो। अ, स्टूडेंट को ये लगे कि हाँ भई मैंने स्कूल जाना है तो मैं खुशी से जाना है। ये नहीं होना चाहिए कि वो रोते हुए चले जा रहा है ना? देन लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? फन फिल्ड, क्रिएटिव, और जहाँ पे बच्चे को पूरा अपना एक्सप्रेस करने की फ्रीडम है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, उसको किसी का रिडिक्यूल का डर नहीं, कोई बुलिंग का डर नहीं है। वेयर द चाइल्ड फील्स फ्री टू पुट अप एज मेनी क्वेश्चंस, ही हैज़ नो फियर इन द माइंड कि अब वो पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा। वन मिनट। So here I would like to narrate a small fable. Fable is, as I told you, जिसकी कोई एक छोटी सी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, जिसकी कोई सीख होती है जिसमें, कि एक कंट्री थी जहाँ पे कोई फ्रूट ट्रीज नहीं थे। तो एक स्कॉलर आया और उसने कहा कि फ्रूट्स की क्या इम्पोर्टेंस है, और उसने लोगों को, वहाँ गांव वालों को समझाया कि फ्रूट्स क्यों खाने चाहिए, क्यों इम्पोर्टेंट हैं। तो उनमें से, गाँव वालों में से एक बंदे ने सोचा कि मैं फ्रूट का अपना एक्सपीरियंस गेन करूँगा और लेके आऊँगा सीड्स वगैरह। तो वो एक एप्पल ऑर्चर्ड में गया, वहाँ पे गया तो एप्पल ट्रीज़ ब्लॉसम में थे, यानी अभी कच्चे थे, फूल आए हुए थे और पके नहीं थे। तो जब उसने वो कच्चे टेस्ट किए फ्रूट्स, तो उसको ना तो टेक्सचर अच्छा लगा, ना टेस्ट अच्छा लगा। सो ही केप्ट ऑन ट्राइंग एंड ही कंक्लूडेड दैट फ्रूट्स आर नॉट टेस्टी, है ना? क्योंकि उसने कच्चे फ्रूट्स खाए थे। अ, एक और व्यक्ति गया, उसने ऑर्चर्ड में जब गया तो उसने एप्पल्स को खाने के लिए गया, तो उसने टेस्ट किया तो उस टाइम पे एप्पल्स जो थे ओवर राइप थे, एंड देयर वर फ्यू एप्पल्स ऑन द ट्रीज, ही डिड नॉट लाइक द टेस्ट। तो क्योंकि उसने रॉटन एप्पल खाएंगे तो क्या टेस्ट रहेगा ना। सो ही कंक्लूडेड दैट फ्रूट तो ऐसे ही आपने ओवर रेट किया हुआ है इसको, ये तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। सी द हियर द प्रॉब्लम इज दैट अब बच्चे ने क्या एक्सपीरियंस, उन दोनों बंदों ने क्या एक्सपीरियंस गेन किया, वो उसके बेसिस पे उन्होंने अपने कंक्लूजन्स फॉर्म किए, है ना? So they could not recognize the difference between a good fruit and a bad fruit. So making experience having an educative value is more important in experiential learning. अगर बच्चा खुद करके सीख रहा है तो वो learning that is going to stay with him, for a long time to come, rather than anything that you just hear from others, or just, I don't say कि दूसरों से सुन के हम कुछ अच्छा नहीं सीख सकते, वो भी इम्पोर्टेंट है लाइफ में, बट
खुद एक्सपीरियंस करके जो आप सीखते हैं वो उससे बढ़िया बेहतरीन लर्निंग कोई नहीं हो सकती। So the implications of experiential learning for classrooms, there are four attributes of experiential learning. One is active experimentation, जिसमें बच्चा कुछ काम करता है, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है, कुछ नए आइडिया को ट्राई आउट करता है. Leads to concrete experience. Concrete experience is basically what you can feel in real life situation, and based on those concrete experiences he observes, which is known as reflective observation. So reflecting on your own experiences कि क्या हुआ था, सोचा उसके बारे में, past experiences क्या हैं, they will ultimately lead to conceptual understanding. And finally, from concrete to observation to abstract conceptualization, that is abstract thinking. तो abstract thinking का मतलब होता है where you can build some images in your mind, where you can make some generalizations and conclusions, and that will be learning from experience. That is experiential learning. So experiential learning ऐसे नहीं कि एकदम से हो जाती है, इसकी पूरी stages हैं और हमें students को हर stage को expose करना चाहिए. Only then it will become a joyful activity. So this experiential learning has to be holistic, individualized, based on learning outcomes, and it is multidimensional 360-degree, that is reporting. Experiential pedagogies, they are nowadays, as we say, that it is going to transform our क्लासरूम्स. अगर हमने अपने स्टूडेंट्स को, अब जैसे मैं बताती हूँ कि एक दिन हमारे एक मैम ने स्टूडेंट्स को लेके गए हर्बल गार्डन में, तो वहाँ पे हर्बल गार्डन में उन्होंने उनको सारे प्लांट्स दिखाए, हर्ब्स दिखाई, कैसे वो उग रहे हैं, क्या वो उनकी मेडिसिनल यूजेस हैं, ठीक है। फिर कुछ एक चीज़ों को उन्होंने वहाँ पे बना के भी देखा, है ना। बेल बेल लगे हुए थे और बहुत सारे एलोवेरा था, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्ब्स वर ग्रोइंग। तो वो स्टूडेंट्स ने उसको, उस सेशन को बहुत एंजॉय किया और बहुत सीखा। हाँ, वही चीज़ हम क्लास में भी वैसे वर्बली बता सकते थे, पर जब वो उन्होंने वहाँ जाके देखा और सीखा और करके देखा तो उनको ज़्यादा अच्छा लगा। सो टीचिंग लर्निंग pedagogies can be questioning, gaming, discussions, dialogues, experimentation, case studies, role plays, simulation, none of which are, lectures or lecture demonstrations as popularly हम जो इतने समय से करते चले आ रहे हैं. Inquiring, investigating, these kind of teaching learning practices, and focusing on various learner competencies like making them resourceful, creative, resilient, independent, self-disciplined, self-directed, reflective, and moreover a very confident person. That is, ये confidence develop करना is very important. नहीं तो आप क्या है कि अपने views को express करने में हमेशा सोचते ही रहोगे. A person who's confident can speak up his mind, नहीं? एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जहाँ पे डाइवर्सिटी को पूरी वैल्यू की जाए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे फोकस किया जाए, वेयर द फोकस इज नॉट इंफॉर्मेशन गिविंग बट इंफॉर्मेशन सीकिंग, where we see what initiative the child has with regard to a particular activity, and focusing teamwork, collaboration, accepting mistakes, building positive relationships, and a culture of care and concern. अभी तक मैंने आपको NEP 2020 के बारे में बताया, जो कि हमारी फॉर्मल स्कूल एजुकेशन को का पूरा स्ट्रक्चर जिसने दिया है। अब मैं आपको बताऊंगी हायर एजुकेशन, क्योंकि across different stages of formal school education, higher education is also equally important because it covers our undergrad, postgrad, and doctoral level programs. Apart from technical and professional education, which is provided by various institutions, like I have listed these here: IITs, IIMs, and ISM,
uh, and so many is NTI, TTTI, and they are under the purview of AICTE, All India Council for Technical Education. At higher education, our focus thrust should be कि हम क्वालिटी एजुकेशन लेके आएँ और प्रोफेशनल एजुकेशन लेके आएँ जो कि हमारे कैंपस प्लेसमेंट्स को एनहांस करे, स्टूडेंट्स की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को एनहांस करे. Such institution at higher education, as you all know, there are different accrediting agencies like Quality Control of India (QCI) or NAC National Assessment and Accreditation Council, जो कि institutions का accreditation कर रही हैं. So accredited institutions, at least they are fulfilling those parameters, those conditions as laid down by these accrediting agencies. So naturally, they are far better than other institutions, but provided that accreditation is done very sincerely and honestly. और हायर एजुकेशन पे जो एजुकेशन होनी चाहिए वो एट पार विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, क्योंकि एट दिस स्टेज स्टूडेंट्स टेंड टू मूव आउट ऑफ द कंट्री आल्सो, some many of them, and so we have to make sure that students are getting that education which is at par with the global standards, focusing on entrepreneurship, leadership, and basically this higher education has to be visionary and research oriented. इस पे रिसर्च की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. So I have focused on the formal education just now, and we will take a 5-10 minutes break, after which we will start with um, the non-formal education. So we will take a 10 minutes break. 10:30 we will start with the non-formal education.
Welcome back, dear students. Hope you're all there. If you are there, please raise your hands. If you can hear me, let me see how many of you have joined back. Yes, you are all there. Fine. Okay. So I think we can start with the second part of today's lecture, that is covering block 2, issues in educational management, sectoral dimensions, and we'll talk about now unit 7, that is the non-formal sector. Okay. सो द नॉन फॉर्मल सेक्टर या नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या चीज होती है? एनीवन हु कैन जस्ट टेल मी द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन? Raise your hands if you want to answer. Yes, Archana ji, can you hear me? Or anyone else? ओके. सो फॉर्मल एजुकेशन जो होती है वो मैंने अभी बताया था कि हमारे फॉर्मल स्कूल ऑफ एजुकेशन यानी कि जो हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में दी जाती है, और नॉन फॉर्मल एजुकेशन एक ऐसी एक्टिविटी होती है, वो भी पर्पस उसका भी वही है कि एजुकेशन देना, बट आउटसाइड द ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, यानी स्कूल कॉलेजेस में ना दे करके ये it covers different programs which are focusing on adult literacy, basic education for out of school children, work skills, developing life skills, vocational skills, and general culture. सो इसके अंदर कोई फॉर्मल लैडर सिस्टम नहीं है कि 10+2 सिस्टम है या फिर 5+3+3+4 सिस्टम है, तो ड्यूरेशन भी इसमें कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन की ड्यूरेशन भी फिक्स्ड है, इस एज से इस एज तक, इस क्लास से इस क्लास तक. बट यहाँ पे फॉर्मल नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो होती है, दैट इज़ फ्लेक्सिबल एजुकेशन विद रिगार्ड टू द स्ट्रक्चर और नेचर ऑफ एजुकेशन, द टाइमिंग, ड्यूरेशन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, the target groups or the clientele group, age group of the learners varies, content varies, methodology of teaching varies, evaluation procedures also vary. So आप ये देखेंगे कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है कि उसमें इतनी रिजिडिटी नहीं है जैसे कि फॉर्मल एजुकेशन में है, पर इसके अपने चैलेंजेस होंगे नेचुरली, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. तो नॉन फॉर्मल एक्टिविटीज के अंदर हमारी 9 कोर कैटेगरीज आर इंक्लूडेड. नंबर 1, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन विच इज़ फ्रॉम 3 to 5 years, जो कि स्कूल स्ट्रक्चर में भी दी जाती है और आउटसाइड या आंगनवाड़ी में या बाल वाटिकाज में भी दी जाती है. दूसरा है लिटरेसी, जो कि फोकस करती है बेसिक लिटरेसी या पोस्ट लिटरेसी फॉर एडल्ट लर्नर्स और नॉन लिटरेट्स. सेकंड, थर्ड इज इक्वलेंसी स्कूलिंग. इक्वलेंसी स्कूलिंग जैसे कि हमारे ब्रिज स्कूल्स हैं या ओपन स्कूल्स हैं, जिसमें कि कोई आप एजुकेशन ले सकते हैं, 10th कर सकते हैं, या कोई ऑल्टरनेटिव स्कूल्स भी होते हैं जिसमें कि ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन होता है, जो कि कई इस तरह के हैं मॉडल्स, आप लोगों ने इनके बारे में सुना होगा. Alternative schools, those are not, according to set pattern. They have their classrooms, not a fixed classroom. Outside, maybe anywhere in a lawn, classes going on like Gurukul, that kind of environment is there. And then it includes life skill training about basic health and hygiene, immunization, HIV/AIDS prevention, nutrition, family planning, drinking water sanitation, environmental preservation, leadership development, home economics, civic education, and so on. So जो कि हमारी फंडामेंटल लाइफ
को इम्प्रूव करती है, एनहांस करती है, वो वाली लाइफ स्किल ट्रेनिंग। देन नेक्स्ट इज इनकम जनरेशन ट्रेनिंग। तो नॉन फॉर्मल जो एजुकेशन होती है वो उसके अंदर वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग पे बहुत एम्फेसिस होता है कि बच्चों के अंदर हम एंटरप्रेन्योरल स्किल्स डेवलप करें, कोऑप स्किल्स करें, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू मैनेजमेंट ट्रेनिंग करें, बुक कीपिंग में इनको कोई कोर्सेज करवाएं, अकाउंटिंग में इनको कोई ट्रेनिंग दी जाए। तो ये जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज भी इसके अंदर बहुत सारे होते हैं। प्लम्बिंग का, फिटिंग का, इलेक्ट्रिशियन का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोकेशनल कोर्सेज आर देयर। देन इज द रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट के अंदर आते हैं हमारे जैसे स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, टू गिव देम एक्सपोजर टू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, मॉडर्न प्रैक्टिसेस जो हैं एनिमल हस्बेंड्री में, वाटरशेड मैनेजमेंट, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, soil conservation, irrigation, fishery management, drinking water sanitation, and so on. And it also includes further education, जो कि जैसे आपने इग्नू से बहुत सारे कोर्सेज आप कर रहे हैं, डिस्टेंस मोड से लैंग्वेज ट्रेनिंग कर सकते हैं फर्दर एजुकेशन के लिए, शॉर्ट टर्म प्रोफेशनल ट्रेनिंग कर सकते हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस चला रही हैं, आईसीटी ट्रेनिंग कर सकते हैं टू इम्प्रूव योर technological skills. Then non-formal education also includes religious education. Religious education which is given in churches, mosques, temples, and other places of worship. Cultural and traditional education, that includes teaching students about traditional forms of music, dance, drama, and art and craft education, indigenous knowledge preservation, और बच्चों के टैलेंट्स को डेवलप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए डिफरेंट जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, आपने देखा होगा प्राचीन कला केंद्र और इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे हमारे फोक कल्चर और उनको भी प्रिजर्व किया जा रहा है। सो व्हाट आर द प्रोवाइडर्स ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, प्रोवाइडर्स एंड को प्रोवाइडर्स। तो ये हमें देखने की बात है कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन ये नहीं है कि प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं होती है बस उसके स्ट्रक्चर में और उसकी ड्यूरेशन में, उसमें सब में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो गवर्नमेंट लेवल 1 पे जो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेटेड एजेंसीज हैं और डिपार्टमेंट्स हैं, आगे मैं इनके बारे में आपको बताऊंगी कुछ एक ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जो कि ऑपरेट कर रही हैं, जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं। सेकेंडली एट गवर्नमेंट लेवल, स्टेट लेवल पे जो कई इंस्टीट्यूशंस हैं और कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लेवल 3 पे, ये भी गवर्नमेंट के अंडर ही हैं सारी। देन इज द कोऑपरेटिव्स, तो जो कि जिसमें कि कम्युनिटी मेंबर्स इन्वॉल्व हैं और कंट्रीब्यूटिंग मेंबर्स उनका शेयर है, प्रॉफिट्स वो शेयर कर सकते हैं। पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं जो कि गवर्नमेंट के एंटरप्राइजेज हैं इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज, we'll talk about some of them. प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं और एजुकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस जैसे कि हमारे स्कूल्स हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, folk development colleges, agriculture colleges, and so many. Then there are professional association, trade unions are also there, which are autonomous or semi-government associations, unions हैं जो कि प्रोफेशनल ग्रुप्स ने खोली हुई हैं, इनके अंदर भी कुछ नॉन फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है। Then there are religious bodies like मिशनरीज हैं, बुद्धिस्ट हैं, इस्लामिक हैं, हिंदू में हैं। तो रिलीजियस बॉडीज़ जो हैं वो भी अपने कल्चर में और अपने जो उनके रिलीजियस मिशंस हैं उनके बारे में सिखाती हैं। नेशनल ब्रांच ऑफ इंटरनेशनल एनजीओ, जैसे कि जिसका हेडक्वार्टर है तो कोई इंटरनेशनल बट उसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। लोकल ब्रांच ऑफ नेशनल एनजीओ, कि नेशनल नेचर की एनजीओ है, उसका ऑफिस जो है वो लोकल लेवल पे है, और एक लोकल एनजीओ जो कि आपके अपने शहर में खुली हुई है।
और आपके शहर में ही ऑपरेट हो रही है और उसकी एक्टिविटीज़ जो है वो आपके अपने सिटी तक के सीमित हैं। Then community-based CBO organizations which are formed at community level between villages, जो पंचायत हैं और उन्होंने बहुत सारी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस खोली हुई हैं अपने विलेजेस में। प्राइवेट बॉडीज या सिंगल इंडिविजुअल्स, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन नॉन फॉर्मल एक्टिविटीज। एनीवन कैन बी एन एक्टिविस्ट। आपने बहुत सारे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट के बारे में सुना होगा जो कि अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी ऑपरेट कर रहे हैं और उन्होंने भी कई ऑर्गेनाइजेशंस बना ली हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंटल एजेंसीज लाइक यूनेस्को, यूनिसेफ, यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक एंड सो ऑन। सो ये सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके प्रोग्राम्स जो हैं हर कंट्रीज में चलते रहते हैं, स्पेशली द डेवलपिंग कंट्रीज। नॉन फॉर्मल एजुकेशन के टारगेट ग्रुप्स कौन है, हम किन को टारगेट करके ये एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि सेंटर्स इतने सारे हैं तो पॉपुलेशन भी तो होनी चाहिए। तो आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत लोग हैं जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं। सबसे पहली कैटेगरी तो है जो कि बिल्कुल नॉन लिटरेट्स हैं या लिटरेट्स हैं। देन जो लिटरेट्स हैं बट वेरी बेसिक लेवल ऑफ लिटरेसी इज़ देयर। लिटरेट्स हैं जो कि थोड़े एडवांस लेवल पे हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइटेरिया, बट they have not got education in formal school or formal colleges. Then there are out of school children जो dropouts हैं, marginalized youth, adults हैं, adolescents हैं जो कि किसी न किसी वजह से अपने एजुकेशन को आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। वुमेन एंड गर्ल्स ये अपने आप में एक कैटेगरी है बिकॉज स्पेशली इन रूरल एरियाज एंड स्लम एरियाज लिटरेसी ऑफ women and girls is still taking a back seat. Rural and urban poor, that they are also forming the target group of non formal education. Ethnic and linguistic minority groups, then groups living in special circumstances such as migrant workers, refugees, demobilized soldiers, and so many Kashmiri migrants, and so many other categories of people in living in special circumstances. Um, but before we talk about these institutions, first let me tell you the issues that are confronting non-formal education. इसकी अपने इस non-formal sector की अपनी ही कुछ problems हैं। तो सबसे पहली तो ये है कि ये फॉर्मल एजुकेशन से अलग है, डिस्टिंक्शन है इसमें। फॉर्मल एजुकेशन एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में है, उसकी फिक्स्ड एजेंसीज है, असेसमेंट क्राइटेरियाज फिक्स है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे वोकेशनल प्रोग्राम्स हैं, वहाँ पे एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं। फिर फॉर्मल एजुकेशन सेक्टर में जो फंड्स हैं वो मतलब बड़े फिक्स्ड फंड्स होते हैं, कहाँ से आ रहे हैं। बट यहाँ पे जो फंड्स हैं वो किसी भी सोर्स से आ सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट से आ रही हैं, प्राइवेट से है, कॉर्पोरेट से है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से है, या पब्लिक प्राइवेट या डोनेशन से, कहीं से भी फंड्स आ रहे हैं। देन नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्योंकि एक वॉलंटरी एजुकेशन है, इसमें कोई अपनी इच्छा से आपने करनी है, ठीक है, तो इसमें कोई रिजिडिटी नहीं है और कोई सेट पैटर्न नहीं है आप कह सकते हैं, एंड दे आर टारगेटिंग द नीड्स ऑफ टारगेट ऑडियंसेस। अटेंडेंस इज नॉट मैंडेटरी, लाइक इन फॉर्मल एजुकेशन आपको अटेंडेंस पूरी चाहिए, you have to come to the school or college daily basis, but here attendance is not mandatory because it's voluntary. Learners sometimes that is another challenge कि non formal education का अच्छा impression नहीं होता कि ये कोई proper education नहीं है। Many of the people feel that way कि ये कोई proper नहीं है ना, इससे हमें कोई आउटकम नहीं मिल रहा। पर अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसके भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन के भी कई सर्टिफिकेशन सब मौजूद हैं, जिसके बाद आप रादर इसमें बहुत सारे जॉब ओरिएंटेड चीज़ें हैं जो सिखाई जा रही है, जो कि शायद हमारे फॉर्मल एजुकेशन में नहीं भी सिखाई जा रही हैं। एक और इशू है कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क नहीं है कोई, जैसे स्कूल कॉलेज का सीबीएसई का अपना सिलेबस है ना,
या यूनिवर्सिटीज़ का अपना सिलेबस होता है। पर यहाँ पे कोई कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क नहीं है और कोई डेटा भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़्ड नहीं है। डेटा प्रोवाइडर्स के मतलब कौन डेटा प्रोवाइड करेगा, टीचर्स का, स्टूडेंट्स का मेंटेन कौन करेगा, इनपुट, आउटपुट कौन आ रहा है, एनरोल हो रहा है, कितने बच्चे पास आउट हो रहे हैं, एफिशिएंसी कितनी है, मॉनिटरिंग कितनी है, इम्पैक्ट क्या है। और कई बार ये आप देखोगे कि डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ भी आपको महसूस होंगी कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में और जो एनजीओज़ हैं उनके बीच में कुछ एक्टिविटीज़ वो वही सेम वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं एफर्ट की और टाइम की और मनी की, कॉस्ट की वेस्टेज भी हो रही है। देयर आर स्पेसिफिक इश्यूज ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जैसा कि मैंने बताया कि कोई सब्जेक्ट मैटर या स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई रिजिड क्लासरूम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। नॉन फॉर्मल एजुकेशन की पब्लिसिटी प्रोग्राम्स जो हैं वो उतने ज़्यादा प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं है। उसको इम्प्लीमेंट करने की एजेंसीज तो हैं, पर इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली हो नहीं पाता है क्योंकि वॉलंटरी है। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि कोई फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर नहीं है और इसके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं जो फॉर्मल सेटअप में होते हैं वो इस तरीके की चीज़ें नहीं हैं। तो आप देखोगे कि एनरोलमेंट्स जो हैं फॉर्मल एजुकेशन में बहुत हाई हैं, बट नॉन फॉर्मल एजुकेशन में एनरोलमेंट्स आपको पुअर मिलती हैं। Now we will talk about some of the non-formal education institutions. यहाँ पे अर्चना जी भी हैं, आई थिंक मैं उनसे बाद में पूछना भी चाहूँगी कि वो उनका NIOS किस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे मैं शुरुआत करूँगी नेशनल लिटरेसी मिशन से, जो कि 1988 में इस्टेब्लिश किया गया। नेशनल लिटरेसी मिशन जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसका मेन एम ही यही है कि जो लोग अभी तक एडल्ट्स एजुकेशन के स्फीयर से बाहर हैं, जिनको बिल्कुल लिटरेसी नहीं है, उनको बेसिक लिटरेसी देना, उनको सेल्फ रिलायंट बनाना और ताकि वो फ्रॉड से बच सकें और उनको फंक्शनल लिटरेसी देना, ये सारी चीज़ें जो है नेशनल लिटरेसी मिशन का काम है। इसका 3 टायर्ड स्ट्रक्चर होता है: नेशनल लिटरेसी मिशन अथॉरिटी, डायरेक्टरेट ऑफ एडल्ट एजुकेशन एंड स्टेट लिटरेसी मिशन अथॉरिटी। तो अब इसमें मैं आपको फिर बताऊंगी कंटिन्यूइंग एजुकेशन स्कीम। मैं थोड़ा थोड़ा कवर अप कर रही हूँ, आप अपने नोट्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में एलैबोरेट तरीके से पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पे ड्यू टू पॉजिटिव ऑफ टाइम आई एम जस्ट कवरिंग मेन पॉइंट्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस। तो कंटिन्यूइंग जो स्कीम है दैट इज़ फुली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम रन बाय कंटिन्यूइंग एजुकेशन सेंटर्स, और 10 कंटिन्यूइंग सेंटर्स जो हैं मिलके एक नेशनल कंटिन्यूइंग सेंटर बनाते हैं। और इनका बेसिकली काम होता है टू ऑर्गेनाइज डिफरेंट वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, एक्सटेंशन सेंटर्स, discussion forums, cultural, sports, recreational centers, and provide detailed information about for the community about different types of teaching learning activities. They also act as libraries and provide reading rooms for the learners. Here I would also like to tell you about something about जन शिक्षण संस्थान, JSS जिन्हें हम कहते हैं। 1967 में ये जन शिक्षण संस्थान खोले गए थे और ये काफ़ी अब तो बहुत सारे बढ़ गए हैं, 221 करीब जन शिक्षण संस्थान है। एक हमारा चंडीगढ़ के पास मोहाली में भी है और मैं पर्सनली वहाँ पे विज़िट करके आई हूँ और मैंने उनकी फंक्शनिंग को बहुत ऑब्ज़र्व किया है, किस तरीके से वहाँ क्या-क्या चल रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज़ है और इसके अंदर बहुत सारे अंडर प्रिविलेज्ड और न्यू लिटरेट्स जो हैं बच्चे एनरोल्ड हैं और इसके अंदर बहुत सारे वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, जैसे कि कैंडल मेकिंग, गार्डनर्स, फिटर्स, इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर कोर्सेज एंड सो बेसिकली इनका पर्पस होता है कि हम कुछ एक बच्चे जो हैं इसको करने के बाद कोई जॉब्स पकड़ सकें, कुछ अपना काम शुरू कर सकें।
फिर है डायरेक्टरेट ऑफ एडल्ट एजुकेशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अंडर एनसीईआरटी. It was established in 1961 and then independently it started functioning in 1971. So this Directorate of Adult Education enjoys the status of a subordinate office under the Department of School Education and Literacy. And recently, I would like to uh, tell you that in collaboration with Directorate of Adult Education and State Literacy Mission Authority, Government of India under MHRD, our college, has organized a wonderful workshop for training the non-literates and neo-literates of our city, beautiful Chandigarh, and where we have prepared around 250 videos on the education of to impart basic literacy. उनको अक्षर सिखाने हैं, इनको नंबर सिखाने हैं, तो वो फंक्शनल तरीके से अपने शहर के कॉन्टेक्स्ट को लेते हुए हमने ये वीडियोस डेवलप किए हैं, और ये अब वीडियोस जो हैं डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एडल्ट एजुकेशन के थ्रू बहुत ज़्यादा प्रमोट किए जा रहे हैं, ताकि लोगों को बेसिकली लिटरेसी दी जा सके. तो ये डायरेक्टरेट्स ऑफ एडल्ट एजुकेशन बेसिकली दे प्रोवाइड एकेडमिक एंड टेक्निकल रिसोर्स टू नेशनल लिटरेसी मिशन. उन्हीं की कोलैबोरेटिंग एजेंसी है जो उनके साथ में मिलके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, और नेशनल लिटरेसी मिशन के अंडर बहुत सारे लिटरेसी जो कैंपेन्स हैं उनके लिए ये एक सपोर्टिंग यूनिट का काम करते हैं. They are also responsible for developing different types of multimedia materials, be it electronic, print, traditional, or folk media. They coordinate and collaborate with all state literacy mission authority and state resource centers, जन शिक्षण संस्थान. ये सब बेसिकली सारी ऑर्गेनाइजेशंस आपस में कोलैबोरेट करती हैं, ताकि हमारा अल्टीमेटली मकसद यही है कि हम फंक्शनल लिटरेसी और न्यूमरेसी जो है वो हमारे नॉन लिटरेट्स और नियो लिटरेट्स को पहुंचा सके. Then there are state resource centers also. They are also professional adult education organizations. They play very crucial role in implementing training and material production of material production activities. They are involved in publishing relevant materials, extension activities, organizing different research studies. And these SRCs are divided into three categories, A, B, C, which receive a grant of 36, 25 and 10 lakh respectively. So state resource centers are also adult education centers. Then again, जैसे NLMA था वैसे ही SLMA भी है, स्टेट लिटरेसी मिशन. ये स्टेट लेवल पे ऑपरेट करता है, वो नेशनल लेवल पे ऑपरेट करता है. बेसिकली पर्पस वही है, लिटरेसी लेके आना, लिटरेसी प्रोग्राम्स रन करना. Then there is another scheme called Integrated Child Development Services, ICDS scheme of 1975. ये भी centrally funded scheme है, which is the purpose of which is to bring the holistic development of the child in the age group of 0 to 6 years, special focus on nutritional health and well-being of the child. क्योंकि इस स्टेज में देखा जाता है कि स्टूडेंट्स में मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होता है, मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है, लर्निंग कैपेसिटी जो है वो अगर नहीं ध्यान दिया जाए तो डेवलप नहीं हो रही होती है. बिकॉज इट इज़ अ फाउंडेशन स्टेज, तो फाउंडेशन स्टेज पे प्रॉपर साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट दैट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड, और मदर की हेल्थ और बच्चे की हेल्थ, उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स को कैटर करना, उनके लिए इम्यूनाइजेशन कैंप्स, हेल्थ चेकअप कैंप्स और रेफरल सर्विसेज ऑर्गेनाइज करना, ये इस स्कीम के अंडर आता है. देन वी हैव कम्युनिटी पॉलिटेक्निक्स ऑल्सो. कम्युनिटी पॉलिटेक्निक्स 1978-79 में खोले गए थे. बेसिकली टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं अंडर MHRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Now you will find that there are around 2,579 polytechnics all over the country.
और इनका रैशनेल ये है कि कम्युनिटी पॉलिटेक्निक हम इसलिए कहते हैं कि पॉलिटेक्निक्स तो हैं ही हैं, वहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन है। कम्युनिटी का मतलब ये है कि उनके अंदर भी कम्युनिटी के बहुत सारे प्रोग्राम्स रन किए जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, ट्रेन फैकल्टी है और इंफ्रास्ट्रक्चर है और वोकेशनल ट्रेनिंग का बहुत सामान है। तो इसलिए स्पेशली लाइक इन विलेजेस या रूरल एरियाज जहाँ पे वोकेशनल प्रोग्राम्स को देने के लिए एक फॉर्मल सेटअप की ज़रूरत है, स्ट्रक्चर की, तो ये कम्युनिटी पॉलिटेक्निक्स वहाँ पे ये काम भी कर रहे हैं। So we have today talked about different organizations, and I would suggest that you take up any two you do a small exercise for your own practice to apply your knowledge, whatever you have learned, that you take up any two issues related to non-formal education, and suggest any one activity for each issue that you may how you may solve these issues. सो आप कोई भी इश्यूज को आइडेंटिफाई करें और कोई भी उसके लिए एक्टिविटीज़ लिखें जो कि आप नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंडर आती हैं, और कैसे आप उन इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप कोई इशू ले लीजिए, कोई एनरोलमेंट का इशू या फंक्शनल लिटरेसी का इशू ले लीजिए, और उसको कैसे आप डील करेंगे, तो आप इसके ऊपर आप लिखिए। ये मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज बताई है। इसके अलावा आप कोई भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन का कोई सेंटर विजिट करिए, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, डायरेक्टरेट ऑफ एडल्ट एजुकेशन हो, या कोई एनजीओ हो, कोई किसी को भी ऑब्जर्व करिए और उनकी, या जैसे मैंने आपको बताया मैं जन शिक्षण संस्थान में गई तो मैंने देखा वहाँ गार्डनिंग के, फिटिंग के, इलेक्ट्रिशियन के बहुत सारे कोर्स, कंप्यूटर कोर्सेज चल रहे हैं। और फिर मैंने वहाँ पे देखा स्टूडेंट्स क्या काम कर रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं। उनकी वर्कशॉप्स हैं बहुत अच्छी, जहाँ पे उनको पूरी ट्रेनिंग मिल रही है प्रॉपर, उनको सिखाने के लिए वहाँ पे बाकायदा फैकल्टी रखी गई है। तो आप उन एक्टिविटीज़ को देखें, अपनी आँखों से जब ऑब्ज़र्व करेंगे, जैसा कि मैंने अभी फॉर्मल एजुकेशन में आज आपको पूरा एनईपी का एक एग्ज़ॉस्टिव व्यू दिया, तो आप ये देख सकते हैं कि एनईपी ने जैसे कि कहा कि हमने बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग में प्रोफिशिएंट बनाना है, वो ऐसी लर्निंग होनी चाहिए। नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी इन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करती है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो, वोकेशनल लर्निंग हो, और वो लर्निंग हो जो कि हमारे लिए रेलेवेंट हो और जो कि हमको कोई जॉब फैच कर सके या हमारे को कोई काम खोलने में मदद कर सके, हम स्मॉल स्केल को इंडस्ट्री खोल सकें। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमारे लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा मीनिंगफुल और हेल्पफुल होंगी। You can read lot of books. I have suggested here some of the books, so you can go through them for further reading. So I think I stop here for the time being, and in case if you have any doubt, you would like to ask any questions, so you can just ask me now, and then I will take your attendance. Yes, those who want to ask questions. Sunil ji. Sunil Joseph. अर्चना जी. दोनों में से कोई भी. You have raised your hands. Please say what you want to. I just want to know the Skill India mission which the government of India has introduced.
Will it fall into a non-formal education system? Yes, definitely, ma'am. Okay, because there are innumerable courses being run over there. I Yes, have seen the site and I find it very uh, amazing the way the entire thing has been organized. yes, So that ma'am. will fall into a non-formal education system. Yes, Okay, yes, thank certainly, you so ma'am. much. Thank you. Yeah. नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं। मैं खुद भी इनमें से साइकोलॉजी के कुछ कोर्सेज कर रही हूँ। और इनफैक्ट मैम बहुत सारे कोर्सेज आपके ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, जैसे कि स्वयं प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। अम, और ये एनपीटीईएल के कोर्सेज हैं। बहुत सारे मतलब आप बेसिकली क्या है कि आप अपनी एजुकेशन को, अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को अपडेट कर सकते हैं इन कोर्सेज के थ्रू। और एडवांस लेवल ऑफ नॉलेज और कई चीज़ें जो है इन ट्यून विद टाइम्स रहना भी बहुत ज़रूरी है। अब हम लोगों ने अपनी बेसिक सारी एजुकेशन की हुई है ना, जो हमारे जॉब के लिए रिक्वायर्ड है। बट अगर हम टाइम टू टाइम, या जो इग्नू के भी बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, ये भी बहुत ही मैंने देखा बड़े अच्छे कोर्सेज हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी मैम, अराउंड 13 कोर्सेज तो हम अपने स्टडी सेंटर पे ही चला रहे हैं इग्नू के। और अगर आप मुझे 1 मिनट का टाइम दें तो मैं आपको इन कोर्सेज के बारे में, इनके नाम एटलीस्ट बताना चाहूँगी जो हमारे अपने स्टडी सेंटर पे चलाए जा रहे हैं। 2013 में हमने मैम ये स्टडी सेंटर अपना बनाया था, और तब से लेके अभी तक हमारे ये बहुत सारे कोर्सेज जो हैं ये चलाए जा रहे हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी। Yes, ma'am. I was telling you about different courses that we are running here at our study center, like MA Education. It's a 2 years program. MA Adult Education, MA Distance Education. Um, then we have many of the postgraduate diploma programs like this PGDEMA, देन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये भी बड़ा पॉपुलर है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हायर एजुकेशन, जो लोग हायर एजुकेशन में अपनी नॉलेज को एनहांस करना चाहते हैं। देन अनदर वंडरफुल कोर्स पीजीडी पीपीडी, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्री प्राइमरी एजुकेशन। ये भी कोर्स है मैम जो हमारे स्टडी सेंटर पे है। Postgraduate diploma in school leadership management is another course which is meant for school leaders and administrators and then principals. Um, then we have B.Ed, of course, is there. B.Ed तो है ही है सबसे, जो जिससे हमारी स्टडी सेंटर की शुरुआत हुई थी वो B.Ed ही था। उसके अलावा कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं, जैसे CIGA, सर्टिफिकेट इन गाइडेंस, certificate program in value education, and then diploma program in value education. And now in future we are thinking of starting MA psychology and other courses once it becomes a regular study center. सो देखिए, कोई मेरा यही कहने का है कि पढ़ने लिखने की कोई सीमा नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती। हम जब भी चाहें वो हम किसी भी स्टेज में अपने को एजुकेट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऑल वी नीड टू डू इज़ दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट चाइल्ड विदिन अस, you know, who's eager to learn, who
who's curious by nature, and let that innovation, that curiosity, let's not kill that, let's nurture it further. और मैं अभी आपके सारे ही लर्नर्स को ये कहना चाहूँगी कि आप अभी आपके कल से और दूसरे सब्जेक्ट्स शुरू हो जाएंगे. दिस इज़ गोइंग टू बी my last session in the series. And before I conclude, just to inspire you all, I would like to recite a small poem in front of you. Incidentally, एक ये भी शौक पाल रखा है मैंने, किताब लिखी है अभी अपनी, और ये चंडीगढ़ साहित्य अकेडमी से पब्लिश हुई. तो मैं इस किताब में एक आपको पोएम सुनाना चाहूँगी. प्रेरणा का रंग इस कविता का शीर्षक है. और ये कविता जो है ये मेरी एक ज़िंदगी की रियल लाइफ इंसिडेंट्स के ऊपर बेस्ड है. जब मैं स्कूल एजुकेशन में थी उस टाइम की बात है. अब तो खैर मुझे पिछले 25 साल हो गए यहाँ पे हायर एजुकेशन सेक्टर में, बट मेरे पास स्कूल एजुकेशन की बहुत अच्छी, बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं. मैं आपके साथ में एक मेमोरी शेयर करना चाहती हूँ. प्रेरणा का रंग. आओ बात करें कुछ चुनिया चुनिया, सृजन कला और कौशल की अनोखी है दुनिया. तो आइए इसके आयामों पर नजर डालें, एक बच्चे की कहानी को सुन ले, सुना ले. मेरी कविता का किरदार है ऋषि, जिसमें वैज्ञानिक क्षमता है कूट कूट भरी. मैं स्कूल में प्रदर्शनी लगाती हूँ और ऋषि को गहरी सोच में पाती हूँ. वह अजब अनूठा बच्चा है, उसे सदैव विचित्र ही भाता. दिल का वो सच्चा है, न जाने दिमाग में क्या कौन जाता. खोया खोया सा वो सबकी डांट खाता है, होमवर्क पूरा नहीं पर अव्वल नंबर लाता है. प्रदर्शनी में न जाने क्या करेगा, सोच सोच मेरा मन घबराता है. एक दिन जब प्रिंसिपल का बुलावा आया, डरते सहमते ऑफिस को कदम बढ़ाया. ऋषि की माँ थी अति क्रोधित, देखकर मेरा मन हुआ क्षोभित. उनका क्रोध कहीं न कहीं था वाजिब, मैंने चुप रहना समझा मुनासिब. मिक्सी तोड़ टुकड़े ले आया था वो, प्रदर्शनी में मोटर जरूरी थी जो. जब पूछा तो ऋषि का जवाब आया, यूं ही पड़ी थी मिक्सी थी जाया. बच्चे की उत्सुकता देखूं या नुकसान, ऐसे ही बच्चों पर वक्त होता मेहरबान. अरसे बाद ऋषि का एक खत आया. अरसे बाद ऋषि का एक खत आया, वक्त पर पड़ी धूल को यूं हटाया. उसमें शुक्रिया सिर्फ एक शब्द लिखा था. उसमें शुक्रिया सिर्फ एक शब्द लिखा था, साथ में नासा का नियुक्ति पत्र रखा था. यकायक ही मिक्सी वाली घटना याद हो आई, आंखें सजल थी जैसे सफलता खुद ही पाई. हमारी कक्षा में रोज ऋषि आते हैं, हमारी कक्षा में रोज ऋषि आते हैं. उनकी प्रतिभा को क्या हम निखारते हैं. सवाल गहन है, संवाद तो करना होगा. सवाल गहन है, संवाद तो करना होगा. बच्चों के इंद्रधनुषी सपनों में प्रेरणा का रंग भरना होगा, प्रेरणा का रंग भरना होगा. तो ये कविता मैंने इस बच्चे को समर्पित की है, जिसने एक बार तो मुझे डरा दिया था मिक्सी तोड़ के, पर हमें एज एजुकेटर्स देखना है कि हम अपने स्टूडेंट्स को, एक टीचर पढ़ा सकता है, लेक्चर दे सकता है, पर कोई टीचर अगर अपने स्टूडेंट्स को इंस्पायर करता है तो वो हमें एक इंस्पिरेशनल लीडर, एक इंस्पिरेशनल टीचर वो बनना है. और इसी मकसद के साथ मैं आप लोग सभी का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों के साथ मेरे को बहुत ये बड़ा अच्छा इंटरेक्टिव मेरा ये कुछ दिन मैंने आपके साथ बिताए, और मुझे भी आप लोगों से बहुत सीखने को मिला.
उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी ये लेसन्स जो है वो अच्छे लगे होंगे और आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा। और आपकी अटेंडेंस लेके फिर मैं ये सेशन को यहीं पे कंक्लूड करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द पोएम। थैंक यू। आप लोग स्टूडेंट्स कदरदान होते हैं तो लिखने का हौसला बढ़ जाता है। अब हम आपकी अटेंडेंस देख लेते हैं, क्योंकि वही स्टूडेंट्स हैं। कोई नया स्टूडेंट हो तो बता दे। चंद्रिका गुप्ता। Yes, ma'am, present. ओके, सिमी। सुनील जोसेफ। मोहित अरोड़ा। ओके, दीपेश। Yes, ma'am. अर्चना जी। Yes, ma'am. Yes, महिमा ma'am. जी। हाँ जी, महिमा जी। सुनील। सुनील हो गया। देन वी हैव किशोर। यस, किशोर डिसूजा। देन Yes, ma'am, present. यस यस। और कौन है? ज्योत्सना। गोविंद। यस मैम, लक्ष्मी, दूसरी लक्ष्मी ज्योत्सना। लक्ष्मी ज्योत्सना। यस मैम। ओके, शिल्पी। शिल्पी रघुवंशी। शिल्पी रघुवंशी। शिल्पी रघुवंशी। और एक बार और देख लूं मैं जो लोग प्रेजेंट हैं। कमल मैम, कमलप्रीत। ओके, मैम ज्योत्सना आकरे। कमलप्रीत। ज्योत्सना आकरे। हेलो। हाँ जी, फिर ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ कमल ਕਰ जी, ਦਿਓ। माइक ऑफ कर लो। ज्योत्सना आकरे हो गया। और मीनू साहा। मीनू साहा कौन है? मीनू साहा। ये पहली बार आए हैं शायद। शिल्पी रघुवंशी। I'm Minati, ma'am. It's my email ID is like that, Minu Shaha, Okay. 23@gmail.com. What's Yes, your? ma'am. Please put up your attendance in the chat box, along with Okay. your enrollment number and RC. Okay. Sure, ma'am. शिल्पी रघुवंशी। ओके, आप पहले थे शिल्पी? No, ma'am, this is my first class. दिस इज योर First class, ma'am. फर्स्ट क्लास। ओके, आप किस आरसी से हैं शिल्पी जी? Ma'am, I'm from Bhopal, Bhopal Regional Center. ओके ओके, फाइन, ठीक है। और कोई पहली बार आए हो जो? ओके, anyone who's left? Yes, ma'am. My name is not mentioned. ओके, सॉरी, देवेंद्र। आप तो हमारी क्लास में पहले दिन से प्रेजेंट है। Yes, ma'am. Thank you. I would like to take a screenshot if possible. It's not allowing. Ma'am, anything you required
in terms of help for digital archives and digital record management, let me know. Yeah, that's very nice because I have Devendra ji, can you just share your mobile number? I would Yes, ma'am. हाँ? आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए. Yeah, this is my number. Okay, 9414385404. आप आरसी कौन सा आपका? Ma'am, Jaipur. आरसी जयपुर. ये आप ही का मैंने एग्जांपल कल भी शेयर किया था, डिजिटलाइजेशन ऑफ Yes, ma'am. कंटेंट के Yes, ऊपर. yes. I was present in the class that time. ma'am. ओके ओके ओके. Actually, I don't intend to disturb you that time, so I didn't mention anything. अच्छा अच्छा अच्छा. नहीं नहीं, अब आपने देखिए कोई अच्छी चीज हमें बताई है तो हम बिलीव करते हैं कि हम दूसरों से भी इसके बारे में शेयर करें. Yeah, ma'am. Thank you so much, ma'am. Yes. Okay, students, thank you so much for your valuable time. सभी के इनपुट्स बहुत ही अच्छे थे और सबने बहुत अटेंटिवली क्लासेस को अटेंड किया. अब मैं उम्मीद करूंगी कि आगे भी जो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स आएंगे, डिफरेंट एकेडमिक काउंसलर्स आपकी क्लासेस लेंगे, आप सभी को अटेंड करें. क्योंकि ये इग्नू का आरसी चंडीगढ़ का बहुत ही अप्रिशिएबल एफर्ट है. मैं तो आरसी चंडीगढ़ की जितनी भी थैंक्स करूं उतना कम है, क्योंकि इनके सहयोग से ये सारी चीज़ें लगाई जा रही हैं. अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये ऑफलाइन भी हमने आज से बीएड की वर्कशॉप भी शुरू कर दी है हमारे सेंटर पे. तो आप लोगों को सबको आपके फ्यूचर के लिए और आने वाले टाइम के लिए मेरी ब्लेसिंग्स और गुड विशेस. आप लोग खूब तरक्की करें और नए नए कोर्सेज करें, अपनी लर्निंग की जो नीड है, जो चाह है, उसको बरकरार रखें. थैंक यू सो मच. Ma'am, please WhatsApp me your number if possible. Just Yeah, I will. Thank you, ma'am. Okay. Thank you. Have a good day. Yeah, project session, of course, I will request RC. Thank you, Kamalji. Thank you for your wishes. Thank you for your concerns. Bye-bye.